So hello guys, I am Kumar K. Previously I worked as software engineer at Amazon and Meta. So guys, CoinDCX pays a salary of 20 plus lakhs for their fresher software engineer role and a very good stipend for their SD intern role as well. Recently, my student has cracked off-campus SD1 offer from CoinDCX. So in the upcoming podcast, we are going to discuss what all things you need to do so you can also crack such great offer off-campus. Talking about my student, he was a beginner in DSA and programming, but with enough practice and daily life training, he achieved a total mastery in DSA plus OA plus CP. He is also an ICPC regionalist now. So this podcast was taken 5 months ago, so now let's watch it. Ram Ram Ji. Guys, I am Kumar K. Previously I worked at Amazon and Mia.net as a software engineer, and now I spend most of my time in guiding and training students like Jatin so they can reach their final goal. So today it is a very special podcast with my very lovely student Jatin. He has recently cracked off-campus SD offer from CoinDCX and he has been working very hard since a very long time. Okay, his attendance is also the highest in our day life DSA plus OA plus CP training. So Jatin, can you give your small introduction to our audience, Jatin? Sure. Hi everyone. I am Jatin Salgotra, born and raised in Chhattisgarh. I did Bachelor's of Technology in Computer Science and Engineering from Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, and I graduated in 2023. Later, I am currently a software engineer in CoinDCX, working in platform engineering and maintaining DevOps. So that's a short about myself. Very nice to know you, Jatin. So Jatin, I have mentioned all the questions which the audience wanted to ask you. The first question is, ऑफ कैंपस में आपने क्या किया? जनरली बच्चों को बहुत इश्यूज हो रहा है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, 1 year एक्सपीरियंस, 2 year एक्सपीरियंस, 3 year एक्सपीरियंस, दे डू नॉट गेट इंटरव्यूज और ओए लिंक्स ऑफ कैंपस. सो उनको क्या करना चाहिए और आप क्या करते थे, आप थोड़ा डिटेल में बताइए ऑफ कैंपस. I first of all reach out to let's say कोई company की opening है for example, so I usually go to that company's profile, get to the employees and usually send some senior level managers or let's say staff software engineers and some basic software engineers with a personalized message that I am looking out for this job and this is my resume and I would love to get referred करके बोलता था. So उसके पहले एक चीज थी कि जो रेज्यूमे रहता था मेरा वो उतना नो फॉर्मेटेड नहीं था और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी थोड़ा सा मतलब नॉट दैट पावरफुल. सो मैंने कुमार के सर का मतलब आपका जो वो LRO था, एक सेशन था लिंक्डइन रेज्यूमे, तो मैंने वो फॉलो किया था. एंड उसके बाद जब मैं रीच आउट करता था तो आई समटाइम्स लेट्स से इफ आई अप्लाई फॉर 10 कंपनीज, 2-3 कंपनीज यूजुअली कॉल बैक्स. मतलब आपको लिंक्डइन रेज्यूमे इंप्रूवमेंट करना पड़ा था बिकॉज जब मैं चेक भी किया था तो मतलब HR देखते थे मेरे प्रोफाइल को बट गेटिंग नो रिस्पॉन्स. तो फिर मैंने जब किया था तो उसके बाद कॉल्स आई थी एंड सडनली फिर एक CoinDCX की मुझे ओपनिंग आई थी. एंड फिर उसमें मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया था कि उसके एम्प्लॉइज में गया. CoinDCX का आपने क्या प्रोसेस एग्जैक्टली फॉलो किया था कि आपको CoinDCX से इंटरव्यू आ गया, वो आप थोड़ा समझा सकते हैं? उसके I got an opening information from let's say some Insta hire or somewhere, and when I went to the LinkedIn, उसमें मैंने उनके एम्प्लॉइज में लेट्स से कोई हायरिंग मैनेजर्स और स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऐसे करके कुछ 10 या 15 पीपल को मैंने भेजा था पर्सनली मैसेज. सो फ्रॉम वन ऑफ देम आई गॉट रेफर्ड. एंड तो मतलब आपको मल्टीपल लोग को भेजना पड़ा. वो एक्चुअली वो बेटर भी है बिकॉज यू कैन नॉट रिलाई ऑन वन पर्सन फ्रॉम वन कंपनी. बेटर सेंड many people. Okay. और ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग भी करते रहेंगे? LRO मैंने किया था उस टाइम. ओके. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो जो हमारी फेवरेट कंपनी CoinDCX, उसका आपको कितना टाइम मिला? जैसे आपको रेफरल मिला तो कितने दिन बाद आपको रीच आउट हुआ कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला? Within 1 week actually I got the call from an HR कि they are interested and they have to start the interview process, but since their deadline is very short so they wanted to complete it within 1 week. So I was ready because I was doing the training and को ऐसा था कि क्वेश्चंस मेरे चल ही रहे थे प्रिपरेशंस एंड मेरा CPDSA मतलब फ्लो था उस टाइम पे. तो I was like there is always a little bit of nervousness, right? नर्वसनेस तो बहुत रहती थी, इसलिए मैंने 4 days बाद स्टार्ट करने के लिए प्लान किया बट उन्होंने बोला 2 days में स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो अब फर्स्ट राउंड कैसा था, कौन सी चीज पर बेस था और सारी चीज क्या आप एकदम थोड़ा डिटेल में बताना चालू कर सकते हो? Sure. First round का मुझे जब HR का कॉल आया था, they usually said that it's a DSA round, and there will be 2 questions and it will be around 60 minutes. Okay. So only 60 minutes for 2 questions. 0 minutes, हाँ, 1 hour only. फिर जो first question when I got was recursion and backtracking based. So when उसको भी जब उनको they usually want to see कि तुम कैसे क्वेश्चन को तोड़ रहे हो, कैसे backtracking and how you are writing the code. They wanted to see it.
And the second question, so सो लाइक first जो आप question, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका रिकर्शन बैक ट्रैकिंग था, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरव्यू राउंड में पहला ही क्वेश्चन बैक नहीं नहीं मतलब दे I दें? was bit nervous because first question generally easy होता है, हाँ, and once I got the backtracking I was like okay थोड़ा सा है तो switch आपको बस करते हैं. अप्रोच बतानी पड़ी कि उसको कोड भी लिखना पड़ा फर्स्ट वाले का, क्या क्या करना पड़ा आपको बताओ. No, actually they have the IDE, so we have to write the code, and हाँ उन लोग proper test cases भी थे, their internals or test cases, so they all have to be get passed. Then only that question is marked as done. या सो इट मींस यू कैन नॉट गेम द सिस्टम, ऐसा नहीं कि नहीं, आप कुछ भी थोड़ा कोड लिख कुछ के भी कर दो हो जाएगा नहीं. ओके. Second question was तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आपने कितनी देर में कर दिया था, एनी आइडिया? मुझे क्वेश्चन ट्राई किया था समझने का 5 मिनट्स में, हाँ. और उसके बाद सूडो कोड जब लिखा एंड कोड लिखा तो अराउंड 15-17 मिनट्स में फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया था. ओके, फिर वो सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन कर गए, राइट? मूव ऑन, दे प्रोसीडेड टू द सेकंड क्वेश्चन. अब जैसे मैंने आपसे पहले ही बात कर रखी, तो मुझे पता है सेकंड क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, पर आप बताइए कैसा आपका प्रोसेस था सेकंड क्वेश्चन का, कौन से टॉपिक पर था और कैसे आपको वो दिया गया था सेकंड क्वेश्चन, और या फिर आपने उसको देखा हुआ था कि न्यू था, वो सब भी बताइए. हाँ, सो जैसे सेकंड क्वेश्चन मिला दैट वाज समथिंग रिगार्डिंग सब एरेस. सो Okay. अब सब एरे के जनरली क्वेश्चंस में ना जो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि पहले इसको ब्रेक डाउन करो. द मोर यू ब्रेक डाउन द बेटर यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि क्या होने वाला है. तो मेरे को पता चला था कि कुछ हैश मैप लग रहा है, प्रीफिक्स लग रहा था और बेसिक ग्रिडी लग रहा था उसमें. तो उसके कॉम्बिनेशन से वो क्वेश्चन बन मतलब रहा था. इतने सारे टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में थे, राइट? ये क्वेश्चन में था. और वो क्वेश्चन आपने देखा हुआ था कि आपको पूरा न्यू लग रहा था? एक्चुअली मैंने बनाए हुए थे, जैसे आपके वाले में भी कुछ हार्ड वाले जो हमने 2200 के कोड शेफ क्वेश्चंस बनाए थे ना, तो उसमें कुछ पार्ट उसके मैंने देखे थे, तो कनेक्ट हो गए थे उस टाइम. बहुत बार टू पॉइंटर ग्रीडी हैशिंग का Mostly, ओएसीपी के क्वेश्चन करे होंगे कोर्स में, तो आपको पता Mostly, होगा, हाँ. आइडिया होगा. True. बट अगर समझो लाइक किस पर्सन ने नहीं किए, तो इट मींस इट्स अ टोटली न्यू क्वेश्चन, राइट? Totally new question, correct. ओके. I would say the biggest thing is just break down the question, क्योंकि Okay. उसके बाद आप eventually you will be able to solve it. ओके ओके, तो लाइक वो जब आप क्वेश्चन कर रहे थे, तो कितने मिनट्स के बाद आपको उसका लॉजिक आया, फिर कितना मिनट में आपने जो कोड किया, उसमें आपका कितना टाइम गया था, वो आप कुछ बता सकते हो, या फिर आपको सिर्फ कोड सूडो लिखना पड़ा था कि फुल लिखना पड़ रहा था, ब्रूट ऑप्टिमल, वो आप थोड़ा बता सकते हो? हाँ, एक्चुअली जब मैं ब्रेक डाउन कर रहा था तो मुझे बहुत डाउट हो रहे थे. सो वन थिंग आई वुड से कि इंटरव्यू से कंटिन्यूअस यू शुड बी कम्युनिकेटिंग थ्रू आउट द इंटरव्यू कि लाइक क्या हो रहा है, मतलब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है. सो मैंने फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स, थोड़ा ज्यादा टाइम लिया था मैंने, बट आई वाज कंटिन्यूअसली आस्किंग क्वेश्चंस कि कंस्ट्रेंट क्या है, नंबर्स नेगेटिव होंगे कि पॉजिटिव ही रहेंगे एरे में, और ऐसे कर करके ब्रेक डाउन किया. एंड इवेंचुअली 20 मिनट्स में ना उसको समझ में आ गया था कि आई गेट इट. सो ही इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग विद सूडो कोड, ही वांटेड टू डायरेक्टली प्रोसीड विद द कोडिंग पार्ट. So language was not a barrier, मतलब आपको जो पसंद है you can use, but C++ किया था C++. हाँ, CP वाले C++. C++ is better. I would recommend also क्योंकि इसमें memory management you will learn कि कैसे pointers और memory management अच्छे से होता है. So I spent some 15 minutes and I written that code and टेस्ट केसेस में चेक हो गया. ओके, so it's good. फर्स्ट राउंड जब हो गया तो आपका फीलिंग्स क्या थी, क्या आपको लग रहा था आपको सेकंड राउंड के लिए बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, और कितने दिनों के बाद आपको बुलाया, वो आप बताइए. मतलब मेरे को पर्सनली फीडबैक वाज गुड बिकॉज मैंने दोनों क्वेश्चन के सब टेस्ट पास हो गए थे सारे, तो बोथ क्वेश्चंस वाज डन. तो आई वाज लाइक ओके आएगा शायद, एंड सेकंड डे ही आ गया था कॉल, एंड सिंस दे आर वेरी एग्रेसिव ऑन हायरिंग पार्ट, सो विद इन नेक्स्ट डे, मींस थर्ड डे ओनली दे हैव द सेकंड राउंड. ओके, सो आपको थर्ड डे को ही सेकंड नेक्स्ट राउंड आ गया, राइट? हाँ. सो नेक्स्ट राउंड कौन से टॉपिक्स पे बेस्ड था, क्या आपको पहले ही बताया गया था कि क्या हुआ था, वो बताइए. Correct. The HR told me that it will be probably LLD round, LLD or HLD round. Okay. But usually when you have experience less than 3 years, na, they will usually ask LLD round, not HLD. Okay. So for LLD round, and when I went to the round, it was 45 minutes, और इसमें parking lot के ऊपर में पूछा गया था. Okay, so it was a low level design problem. Low level, proper low level. Start होते साथ ही introduction हुआ and directly they started asking the parking lot question. Okay, तो generally like बच्चे confusion में चले जाते हैं, like LLD का क्वेश्चन आया तो जो उनको बोला है वो पूरा ही कोड करने लग जाते हैं. तो आपके एक्सपीरियंस में क्या हुआ था और क्या करना चाहिए LLD वाले जो राउंड्स बच्चे दे रहे हैं कैंडिडेट्स, आप उनके बारे में बताइए. I made this mistakes in previous time, so this time I was prepared कि first of all ask as much requirements as possible. आराम से थोड़ा take your time, but ask as many possibilities, like what input I will be getting and what output I have to give. Each का तो we will figure it out. So in that way, I first ask and 10-20 minutes I take, and then generally parking lot में उनका था कि मुझे structure कैसे बनाऊं डेटा का, कि parking lots हैं तो उसका structure कैसा होगा, कार आ रही है तो उसके लिए क्या डेटा चाहिए, आप उसका सॉलिड प्रिंसिपल्स कैसे सही से सॉलिड प्रिंसिपल्स. ट्रू. तो सॉलिड प्रिंसिपल अच्छे से आना चाहिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन LLD. और
फिर उसके बाद उनको कोड का उतना नहीं था, दे डोंट वांट दैट थिंग, दे जस्ट Like, वांटेड वो टू ये नहीं चाहते कि आप पूरा ही लिख के पूरा दें। नो विद इन 45 मिनट आई आपसे थिंक। चाहते हैं कि आप मेन स्ट्रक्चर, मेन क्लासेस और जिन जिन में उनको इंटरेस्ट है वो कोड करके दे दो, राइट? करेक्ट, yeah, so I was using C++, so they just wanted कि interface बना के दिखा दो and some what just temporary data you can have inside it and what the structure you will be creating, so that's all in LLD mostly in most of the organization. So like आपने उनसे पूरा परफेक्ट कम्युनिकेशन किया होगा तब आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स पता चली होंगी। Yeah. If there was not much communication तो फिर से इशू हो सकता था, राइट, कि हम सब लिखने चले जाए। So guys, communication is a very important part in LLD round. तो LLD का आपका कितना मिनट्स तक चल रहा था वो round? 45 मिनट्स का था, बट एक्चुअली जल्दी हो गया था क्योंकि जो इंटरव्यू थे दे आर वेरी फ्रेंडली, so he was also giving Already, credit. yeah, they were already with the happy with the round one performance. Yeah, like I got all the requirements, then only they देखो Oh. इंटरव्यू LLD में विद इन 20 मिनट्स ओनली दे विल जज यू कि आपने अगर सारी रिक्वायरमेंट ले ली, दैट मींस यू आर गुड टू गो, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन LLD. ओके ओके, सो वही कम्युनिकेशंस और कम्युनिकेशन सही से करना और रिक्वायरमेंट अजम्पशन सब क्लियर करवाने। तो Assumptions फर्स्ट clear इस राउंड के बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी और कितना टाइम के बाद आपको नेक्स्ट राउंड और के बारे में बोला गया? दिस राउंड वाज डाइसी एक्चुअली, मतलब थोड़ा था कि कुछ तो हुआ है आई थिंक ऊपर नीचे, क्योंकि LLD में पता नहीं चलता ना आगे वाला क्या, DSA में तो फिक्स होता है क्वेश्चन आंसर, इसमें मैं थोड़ा नर्वस भी हुआ था इंटरव्यू मतलब उसमें, क्योंकि वो कुछ मेरे को बोलता था एंड आई वाज डूइंग समथिंग एल्स एंड वो मैच नहीं हो रहा था, एक बार कभी मैच नहीं हो रहा था, Okay. बट मेरे को लगा था थोड़ा ऊपर नीचे, बट आई सेकंड डे ओनली, नेक्स्ट डे डे 4th आई गॉट द कॉल कि ठीक है क्लियर है Okay. एंड वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड. तो जो नेक्स्ट राउंड था राउंड 3, इट वाज लाइक रेज्यूमे बेस्ड मैनेजरियल राउंड. Okay. ठीक है, और वो अगले दिन के लिए शेड्यूल हो गया था क्योंकि डे 5th में इनको खत्म करना था. तो So, like, मैंने तो आपके लास्ट राउंड जो मैनेजरियल राउंड था उसमें क्या क्या पूछा गया, किन चीजों पर आपको पूछा गया? मैनेजरियल राउंड तो अब वैसा नहीं रहा, मतलब दिस मैनेजरियल राउंड इज लेस लाइकली अ बिहेवियरल राउंड बट मोर लाइकली अ रेज्यूमे बेस्ड राउंड. या और तो- उसके अंदर भी आपके रेज्यूमे में जो है उसके सिस्टम डिजाइन में जाएंगे। आ जाता है धीरे धीरे. तो फिर मेरा जब राउंड स्टार्ट हुआ था तो देवर 2 स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और उन्होंने मेरा रेज्यूमे को बस देखा, स्टार्ट इंट्रोडक्शन से भी फिर रेज्यूमे में आ गए थे. फिर मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे और पर्सनल प्रोजेक्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट जैसे भी थे उन लोगों को था कि ओके लेट्स गो टू द व्हाट यू डिड, व्हाई यू डिड. सो जनरली दे आस्क व्हाई यू डिड, क्यों आपने किया और अपने कंट्री से क्या इम्पैक्ट पड़ा. सो दे वांटेड टू चेक दैट ओनली. और फिर मेरे रेज्यूमे में काफका, GRPC, रेडिस ये सब लिखा हुआ था, तो दे वांटेड टू गो इन डेप्थ कि तुमको कितना आता है. सो दैट वो कन्वर्ट हो गया था HLD राउंड पे, थर्ड राउंड वाला, कि काफका हो गया था इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, इफ यू नो जस्ट टेल अस. तो फिर वो डिजाइन करने लग गए. तो इट वाज जस्ट अ कम्युनिकेशन राउंड. तो आप रेज्यूमे में जो भी लिख रहे हो बस आपको अच्छे से पता होना चाहिए. दैट जो रेज्यूमे में आपने लिखा है आपको पता तो होना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको उसका सिस्टम डिजाइन और बाकी सब चीजें भी पता होनी चाहिए, राइट? basics, not hard, basics. So in round 3 it was basically a managerial round. And एक चीज मैं बताना चाहूंगा, nowadays this is less likely a behavioral round but more likely a resume based round. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जनरली स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आते हैं और कोई हायरिंग मैनेजर या फिर टॉप लेवल कोई आएंगे and they usually ask the resume based things. So when I went to the round there were 2 staff software engineers और मेरा resume पे they went into it. और मेरे personal projects में उन लोग गए and they asked few questions. So the primary questions are like why you made this project, what this project contributed, क्या impact था, कितना scalable इसको आप कर सकते हो. तो उस पे थोड़ा ऐसी वर्बल डिस्कशंस चलते मतलब हैं. आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स के अंदर वो लोग सिस्टम डिजाइन की चीज पूछना चालू करते ट्राई करते हैं कि क्यों बनाया आपने, और फिर मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने क्या क्या किया है उस पे भी वो लोग जाते हैं मतलब कि रियल लाइफ सिनेरियो क्वेश्चन भी पूछेंगे आपको उसके अंदर? पूछेंगे बाद में, मतलब एट द एंड पूछते हैं मोस्टली. ट्राई करते हैं कि पहले आपको जज कर लें कि ओके यू नो एनीथिंग और यू जस्ट मेड इट थ्रू गिटहब रेपो क्लोन वगैरह, ऐसा तो नहीं. तो दे यूजुअली डू दैट. फिर मेरे रेज्यूमे स्किल्स में ना काफका, GRPC, रेडिस, प्रोमेथियस ये सब लिखा हुआ है. तो उन्होंने ट्राई किया था कि इसके अंदर ही चलते हैं, देखते इसको आता है कि नहीं. सो लेट्स से इन काफका दे आस्क कि आर्किटेक्चर क्या है काफका का ओवरऑल, ऊपर से कि काफका में प्रोड्यूसर कैसे भेज रहे, वो ऊपर से था. और फिर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर हम क्यों फॉलो करते हैं और उससे क्या बेनिफिट होता है. तो ऐसा है कि आपको LLD और HLD का ना बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. आजकल यूट्यूब में वीडियोस तो है ही पूरी, तो यू कैन गो थ्रू इट एंड आई थिंक दैट्स मच बेटर. तो वही मेरा ओवरऑल पूरा हुआ था 45 मिनट्स. ओके, सो लाइक थर्ड राउंड के बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी और आपको कब बताया गया कि आप सिलेक्ट हो चुके हो?
मतलब मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि थर्ड राउंड पे ये सब पूछेंगे. एट द एंड दे आस्क्ड बिहेवियरल क्वेश्चन कि लेट्स से यू आर इन लिफ्ट एंड यू नो कि एन कलीग इज नॉट गेटिंग प्रमोटेड, सो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड ऑन दैट. तो वो 2-3 क्वेश्चन पूछा. तो काइंड ऑफ मैनेजरियल वो लास्ट 10 मिनट्स में ही हुआ. बट वही था कि बाकी मोस्टली इन आपको आपका रेज्यूमे के अंदर सिस्टम डिजाइन वगैरह पूछ लिया और जो जो आपने कीवर्ड्स लिखे थे उनमें बहुत डीप चले गए, राइट? हाँ तो यस करेक्ट. पर आपको सिलेक्शन का क्या लग रहा था और कब हुआ सिलेक्शन उसके बाद? सिलेक्शन का तो डर था क्योंकि थर्ड राउंड थोड़ा दो इंजीनियर बहुत शांत थे, मतलब पूरे एट द राउंड, क्योंकि मैं बोले जा रहा था वो लोग सुन रहे थे. कम्युनिकेशन कम हुई थी मेरी. एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है ना. हाँ दे नो वेरी वेल एंड मतलब फिर मतलब पॉजिटिव ही आया. बट थोड़े आई थिंक नेक्स्ट वीक में फिर उन्होंने रीच आउट किया कि या एवरीथिंग इज गुड करके. ओके, सो फाइनल सिलेक्शन के लिए उन्होंने भी 5 to 7 डेज लिए, राइट? 3 to 4 days लिया था. 3 to 4 days. So once again congratulations on the selection. थैंक यू. अब आपके लिए लाइक दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रखे हैं. फर्स्ट वाला डीएसए एंड सेकंड वर्किंग प्रोफेशनल्स का जो आपसे डाउट है, ठीक है? तो अब ये बताइए कि आप वर्किंग प्रोफेशनल थे तो आपका लाइक डीएसए से टच छूट गया था, तो जब आप वर्किंग प्रोफेशनल बने तब से आपका क्या डीएसए जर्नी रहा है, आप थोड़ा समझाना चालू कीजिए. जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग. लाइक मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी उस वो स्टार्टअप थी एंड स्टार्टअप में मेरा 11 hours a day मुझे करना पड़ता था. सो उस टाइम पे मेरा डीएसए का फ्लो बहुत, क्योंकि मैंने कॉलेज में काफी किया था सीपी एंड डीएसए, बट मैं 2 years ऑफ एक्सपीरियंस से मेरा वो खत्म हो गया था. सो फिर मैंने कुमार के सर का वो हार्ड वाला जो लेवल का क्वेश्चंस थे मैंने वो स्टार्ट किए. आपके सेशंस में आता था जिसमें कोड शेफ के और कोड फोर्सेस के अपन 1800 या कोड शेफ को 2200 बनाते थे. तो मैंने जब वो किया तब मेरा फ्लो बैक हुआ कि ओके. और जनरली 11 hours के बाद रात में आके ज्यादा टाइम बचता नहीं है, तो वो 2 hours के स्लॉट में मैं क्या करता था, 5 क्वेश्चन लेता था जिसमें से 1 बहुत इजी, 2 मीडियम क्वेश्चंस और 2 वेरी हार्ड क्वेश्चन. 2 भी मतलब एक हार्ड और एक वेरी हार्ड. तो वेरी हार्ड और हार्ड तो मुझे आप ही से मिल जाते थे, और जो मीडियम होते थे वो लीड कोड के कहीं से भी उठा लो लास्ट कॉन्टेस्ट के या फिर वैसे, और एक बहुत इजी क्वेश्चन ताकि आपका वार्म अप हो जाए. तो आप लाइक सीपी क्वेश्चन के साथ आप ओए वाले भी क्वेश्चन करते रहेंगे जब भी आपको हार्ड वाले मिल जाए? मेरा टारगेट हमेशा यही रहा है कि मुझे क्वेश्चन ऐसा देखना है जो मैंने कभी देखा नहीं है और मुझे उसको तोड़ना है, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट थिंग इन द इंटरव्यूज कि वी हैव टू ब्रेक डाउन अ क्वेश्चन. आप रूब्रिक का इंटरव्यू दे दो, गूगल का दे दो, किसी का भी दे दो, यू विल नेवर गेट अ सेम क्वेश्चन अगेन. आपको ऐसा ही देगा जो नया है, तो आपको तोड़ने आना चाहिए प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्किंग प्रोफेशनल जनरली टाइम मैनेज नहीं कर पाते, ओके? तो उनको आपसे ये क्वेश्चन है कि कैसे टाइम मैनेज करें हम अपने एक्स्ट्रा स्टडी के लिए ताकि हम स्विच कर पाए. और नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई रिलेटेड. अभी एआई आ गया है तो हमको जॉब्स नहीं मिलेंगी, और ये भी एक क्वेश्चन है कि हमको कभी इंटरव्यूज नहीं आते. सो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इंटरव्यूज कैसे लाने, और एआई के बारे में आप क्या कहते हो? सो टाइम मैनेजमेंट तो वही है कि जैसे मैं ऑफिस से अगर रात को आ रहा हूं तो एटलीस्ट 2 hours के लिए एडजस्ट कर लो कि तो लाइक आपको ऑफिस कितने घंटे जाता था? 11 hours होता था. और बैंगलोर में वो तो ट्रैवलिंग में भी लग जाते थे तो बहुत टाइम लगता था. बट एट द नाइट लाइक 2 hours यूजुअली आई टेक, कि मेरे को पता है उसके बाद. और ना तो वो नाइट के 2 आवर्स में आप क्या करते थे? वही 5 क्वेश्चंस लेता था. 1 is very easy, 2 is medium and 4 and 5 is like hard and very hard. और उस पे मैं पूरी रात लगा देता था. और एक चीज है जो मैं बोलूंगा कि योर माइंड इज एवरीथिंग. आप 4 hours भी सो के ना बहुत कुछ कर सकते हो. इट्स जस्ट अ कंफर्ट जोन कि नहीं मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. तो मैंने फॉर द नेक्स्ट 3-4 months जब आपके भी कोर्स करता था तो 4 और 5 hours समडे और वीकेंड में एक दिन अच्छे से सो लो, और वीकेंड्स में भी पढ़ो अच्छे से, तो वो हो जाता है. सैटरडे संडे भी ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं आपको पढ़ना पड़ता था? करते था, बट टाइम मैनेज हो जाता था कि ठीक है अभी 2-3 घंटे बाहर जा रहा हूँ और अच्छे से आज स्लो लिया तो शाम में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे. थोड़े दिन का ही होता है, उसके बाद तो आपका फ्लो आ जाता है तो आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो. ठीक है. और एआई के बारे में आप क्या बोलते हैं? एआई तो मतलब ऐसे कि ऐसा कुछ नहीं है. लोगों को वो लोग चाहिए जो लॉजिक बना पा रहे हैं, ठीक है, और जिन लोग को पता है कि काम कैसे करना है. एआई बहुत लोगों ने कंपनीज ने अडॉप्ट भी किया और वापस से वो मैन पावर में भी आ गए. जैसे बिल्डर एआई भी हो गया एक, मतलब फ्रॉड था जो भी है. GPT-5 जो अभी मतलब गलत चल रहा है उसके आंसर्स, राइट? तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. तो ऐसी है कि फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी 100% अडॉप्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ बैक एंड इंजीनियरिंग और फ्रंट एंड और लेट्स से आईटी फील्ड में. तो बट हाँ, आपको लॉजिकली अच्छा होना पड़ेगा. क्योंकि एआई प्रोबेबिलिस्टिक होता है, राइट? प्रोबेबिलिस्टिक है, कभी 100% होगा ही नहीं. प्रोबेबिलिस्टिक होता है. अगर लाइक कंपनी आपकी पूरी एआई पे डिपेंडेंट है तो वो जो भी कोड पुश करेगी वही चले जाएगा मिलियंस ऑफ यूजर्स को. तो वो कोई रिस्क नहीं लेगा. तो फिर कौन रिस्पांसिबिलिटी लेगा? तो अगर एआई इंटीग्रेट कर भी रहे तो ऑलवेज डेवलपर्स आर नीडेड टू चेक कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको प्रॉम्प्ट कौन देगा. तो बेसिकली एक डीप नॉलेज वाला पर्सन हमेशा नीडेड है. हम सब चीज उस पे नहीं छोड़ सकते.
लाइक तो अभी इसीलिए मार्केट में वैसे लोग चाहिए जो लीड भी कर पाए प्रोजेक्ट को, या फिर जो सोच पाए कि करना क्या है, किसका कितना इम्पैक्ट होगा और क्यों करना है। ऐसे ही नहीं कि बस इंप्लीमेंट कर देना और आगे बढ़ना है, क्योंकि वो चैट जीपीटी कर देता है। ओके तो आई थिंक दोज काइंड ऑफ पीपल विल स्टे इन इंडस्ट्री, आई वुड से। ओके जतिन, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। होपफुली बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आपको देखे और इंस्पायर हो आपके जैसे ग्रेट ऑफर्स क्रैक करने के लिए। सो थैंक यू वन मोर टाइम जतिन फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी बाय यहाँ एवरीवन।